Hello everyone, hope you're keeping well. So, this is the last part, the third part of class 11 Sociology ISC. इसके बाद I'll be starting the second chapter. So, last part में आपका मैक्स वेबर है, तो जितने भी मैक्स वेबर ने हमें कॉन्सेप्ट्स दिए थे उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स रीड समथिंग अबाउट मैक्स वेबर. वो कौन थे? So, he was a German sociologist, philosopher, and political economist who is considered one of the founding father of sociology, uh, alongside Karl Marx and Emil Durkheim. His work helped shape modern sociology, economy, politics, and religion a lot. And उनके जो concepts थे like the ideal types, authority, bureaucracy, and the relationship between religion and capitalism is very important to study. Okay. एंड उनका सोशोलॉजी का जो बेसिस था वो था कि द रीज़न बिहाइंड वाई पीपल एक्ट इन सर्टेन वे और दे डू सर्टेन थिंग्स. ओके, so let's see the first thing, the first concept, which is the concept of ideal types. So let's read the note. Max Weber introduced the concept of ideal types as analytical constructs to study social reality. तो ये एक कह सकते कि mental construct था, okay, like a framework to study the social realities. Okay, these are not moral ideals but exaggerated models that highlight essential characteristics of a phenomenon. Okay, they help in comparing real life situations and understanding deviations. Okay, ये जो मॉडल्स था, मतलब ये जो मेंटल कंस्ट्रक्ट था एक मॉडल की तरह, ये हमें रियल लाइफ सिचुएशन को समझने में हेल्प करता था. एंड the ideal types are formed by selectively emphasizing certain aspects of reality. For example, an ideal bureaucracy may not exist in pure but serves as a benchmark. Now let's understand. First of all, कि आइडियल टाइप तो मैंने आपको समझा दिया. अब मैं आपको इस आइडियल टाइप को और भी इजीली समझाती हूँ कि लेट्स सपोज कोई भी आर्टिस्ट है, वो कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई भी फेस को ड्रॉ कर रहा है किसी का भी, ठीक है. तो पहले वो क्या करेगा कि एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाए, मतलब जस्ट स्मॉल स्मॉल स्केचेस, कोई लाइन ऊपर से नीचे, ऐसा कुछ जो भी करता है, राइट. तो उसी को हम यहाँ पे आइडियल टाइप कह रहे हैं. अभी आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा जब मैं सेकेंड थ्योरी पे आऊँगी तब. So, it is a mental construct or a theoretical framework that helps sociologists study social phenomenon by highlighting essential features. Okay. Now, for example, Weber described an ideal type of bureaucracy or capitalism not as how it actually exists in reality, but how it would look in its purest form. Okay, ideal type are used to measure how close or far a real situation is from the theoretical model. Okay, and also it helps sociologists understand complex realities in a construct way. Okay, so this is all about the concept of ideal types. Abhi, let's move on to the थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये इस आइडल टाइप को, कि इस आइडल टाइप को आप और भी अच्छे से समझ पाओगे. सो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. सो अभी इस थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, सिंपल ईजी वे में. सो ब्यूरोक्रेसी इज़ अ सिस्टम, ओके, इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम विच इज़ फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, दिस इज़ वॉट ब्यूरोक्रेसी इज़. अब ऑर्गेनाइजेशन का अभी अगर एग्जाम्पल मांगो तो लाइक गवर्नमेंट एंड देन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉरपोरेट्स, सभी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट. ये सभी
ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को फॉलो करते हैं इन मॉडर्न टाइम्स एग्जाम्पल के लिए. ओके, नाउ लेट्स रीड द नोट. Weber viewed bureaucracy as the most rational and efficient form of organization in modern society. Key features include the division of labor, hierarchy, rules and regulation, impersonality, merit based recruitment, and maintenance of written records. अब की फीचर्स में क्या क्या है कि डिविजन ऑफ लेबर. Specific tasks are assigned to an individual based on specialization, right? This is the meaning of division of labor. ये भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, राइट? नेक्स्ट है कि हायरार्की. ओके, देयर इज अ चेन ऑफ कमांड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस. ऑपरेशंस आर गवर्नड by fixed written rules. नेक्स्ट है impersonality. इसका मतलब क्या है कि decisions are made based on rules, not personal feelings. Okay, no personal feelings are considered here. नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट को लेके merit based recruitment. मतलब based on your technical qualifications you will be appointed. Okay, अब क्या है, मे बी नॉट ऑल दिस थिंग्स आर फॉलोड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? बट एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस टाइप के रूल्स रखेगा, राइट? सो दिस इज़ लाइक अ फ्रेमवर्क. हमें समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहाँ पे इस टाइप के रूल्स रहेंगे. मे बी सभी रूल्स सही वे में फॉलो हो या ना हो, कुछ ना हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. लेकिन दिस इज़ लाइक अ स्मॉल फ्रेमवर्क, ठीक है? तो दिस इज़ लाइक अ आइडियल टाइप. ओके, एक आइडियल टाइप है. अभी इसको देख के ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होंगी, ठीक है? दिस इज़ द थिंग. नाउ द एडवांटेजेस इंक्लूड एफिशिएंसी, predictability and stability. सो इसके एडवांटेजेस है कि जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. वहाँ पे एक स्टेबिलिटी रहती है. ओके, एंड जो वर्क होता है वो एफिशिएंटली होता है. नाउ वेदर डिसएडवांटेजेस इंक्लूड रिजिडिटी एंड रेड ट्रैप. डिसएडवांटेज क्या है कि ड्यू टू दी लाइक दी rules, so many rules, right? So for this it may become dehumanizing sometime. Okay, this is all about the theory of bureaucracy. Now let's move on to the social action. So Weber defined sociology as the study of meaningful social actions. Now what are the type of social actions? First, the instrumental rational goal oriented action, right? Instrumental rational basically जो कि goal oriented actions है. अब गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि these actions are done for achieving specific goals efficiently. Okay, like for example a student studying hard to get a grade, right? Or to get good marks in the exam. Okay, so these are the actions which we do for gaining or achieving specific goals, right? नेक्स्ट आता है कि वैल्यू रैशनल. ये क्या है कि इट्स गाइडेड बाय बिलीव्स. कोई भी किसी चीज़ पे हम बिलीव करते हैं, दैट इज़ द रीज़न वी डू सच सर्टन थिंग्स. सो इट्स गाइडेड बाय वैल्यूज और बिलीव्स रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल लाइक किसी का पर्स गिर गया और आपको वो दिखा कि हाँ इसका पर्स गिर गया, तो आप उन्हें दो उनका पर्स जो गिर गया था. सो दिस इज़ आपका यहाँ पे कोई लाइक आपका कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि दिस इज़ गुड. आपको ऑनेस्टी पसंद है, आपको हेल्प करना पसंद है, आप जानते हो कि इसका
लाइक एक मोरल वैल्यू है, राइट? तो इसलिए ये आपका बिलीव है, तो दैट इज़ द रीज़न यू हैव डन दैट एक्शन, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट। देन द थर्ड इज effective. This is driven by emotions. So, for example, like crying out of sadness, or something that you like for example dancing या singing, आपका मन हो रहा है तो आप कर रहे हो, okay? So that is like driven by your emotions or feelings. The fourth is traditional, based on customs or habits. So like for example, बड़ों के पैर छूना, ओके, तो दैट इज़ अ ट्रेडिशनल एक्शन। और कुछ भी जो जो भी कस्टम्स है, जो भी हम फॉलो करते हैं अपने डेली डेज में, तो उन सभी को हम ट्रेडिशनल एक्शंस कह सकते हैं, ठीक है? नाउ फोर्थ टॉपिक, प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट of capitalism. Weber argued that Protestant values such as hard work, discipline, and frugality contributed to the development of capitalism. These values encouraged saving and reinvestment, leading to economic growth and capital accumulation. अभी इसको समझने के लिए मैं आपको पहले बताती हूँ एक चीज़, कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसमें बेसिकली दो ग्रुप्स है, ओके? फर्स्ट ग्रुप है जो फर्स्ट ग्रुप है प्रोटेस्टेंट्स, एंड द सेकेंड ग्रुप जो है वो है कैथोलिक। सो प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैथोलिज्म। सो अभी मैक्स वेबर ने क्या किया कि एक कम्युनिटी थी कैल्विनिज्म, तो कैल्विनिस्ट जो थे, तो वो जो कम्युनिटी थी वो प्रोटेस्टेंट मतलब प्रोटेस्टेंटिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है? और वहाँ पे जो रिलीजियस बिलीव है, ओके, या आइडियाज़ है, वहाँ पे हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को और सेविंग मनी को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता था, ठीक है? उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है? ऑन द अदर हैंड जो कम्युनिटीज़ कैथोलिक थी, ठीक है, मतलब जो कम्युनिटीज़ कैथोलिज्म पे बिलीव करते थे, उन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई नहीं दिया एज़ कम्पेयर टू द कैल्विनिस्ट, ठीक है? क्योंकि उनका जो रिलीजियस बिलीव था वो जिस पे फोकस थे, मतलब वो ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ पे फोकस थे, ओके? लेकिन अभी अगर हम प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी को देखें, सो दे व्यूड वर्क एज अ रिलीजियस ड्यूटी and success as a sign of God's favor. This helped create a culture where economic success was highly valued. Okay, and thus Weber thought that economic systems are not just shaped by material needs but also by culture and religious beliefs. मतलब आपका रिलीजन और आपका कल्चर जैसा होगा, या जो जो टाइप के बिलीव्स वहाँ पे होंगे, जो भी कस्टम्स होंगे वहाँ पे, वैसा आपका मतलब कम्युनिटी होगा, एंड वैसा ही आपका इकोनॉमिक कंडीशन होगा, आपका फाइनेंशियल कंडीशन होगा, ओके? दैट इज़ द थिंग बेसिकली इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, ओके? So this is all about the Protestant ethics and the spirit of capitalism. अभी जो last topic है, that is authority and its type. Now Max Weber, authority and its type. Meaning of authority. Authority is a form of legitimate power. It refers to the right to give orders and the ability to get them obeyed. It is accepted as rightful by people, okay?
सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑथोरिटी, मतलब कि आपके पास एक पावर होगा कोई भी ऑर्डर इशू करने का, एंड उस ऑर्डर को कोई मतलब सभी को उस ऑर्डर को ओबे भी करना होगा। अगर कोई ना करे तो उसके लिए पनिशमेंट भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है इस अथॉरिटी का, ये इज़ एक्सेप्टेड एज राइटफुल बाय पीपल, कि ये हाँ ये सही है, ओके। नाउ द फीचर्स ऑफ अथॉरिटी, इट इज़ अ लेजिटिमेट based on belief, involves command and obedience, and exists in a structured system. Types of authority: Weber classified authority into three ideal types. Okay, so what are those types? Let's study. Traditional authority, नाम सुन के समझ में आ रहा होगा. Based on customs and traditions, authority is hereditary and long established. For example, kings, tribal chiefs. Okay, so here power is based on customs and long standing practices. Okay, अगर कोई भी राजा हो तो वो अपना पावर यूज़ करेगा, दैट इज़ द थिंग, ओके। पहले जो होता था, दिस इज़ द ऑथोरिटी दैट द किंग यूज टू हैव, ओके। नेक्स्ट है charismatic authority, based on personal qualities and charisma of a leader, emotional and unstable. Okay, so इसका एग्जाम्पल क्या है कि रेवोल्यूशनरी और द स्पिरिचुअल लीडर्स. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पावर है इट कम्स फ्रॉम द पर्सनल चार्म, हीरोइज्म और लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल. People obey because they believe in that particular leader. Okay, they believe that that leader is good for them because that person, that particular person, have some qualities to actually rule them, to rule that particular community. Okay, for example, अभी यहाँ पे तो दो है, like the religious leaders, okay, like Mahatma Gandhi, and one more very very nice example, that is Hitler. Okay, Adolf Hitler. वो मतलब जो स्पीच देते थे वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था, एंड वो उन्हें लगता था कि दिस लीडर इज़ वेरी गुड फॉर अस, ही हैव द पावर टू रूल. ओके, सो पर्सनल हीरोइज्म के लिए या चार्म के लिए वो जाने जाते थे, एंड ही वाज ओबेड. तो इसीलिए उनके पास एक ऑथोरिटी था, एंड उस ऑथोरिटी को हम क्या कहेंगे? charismatic authority. Okay, now the rational legal authority. Third, based on laws and rules, authority comes from position, not person. For example, the government officials and the judges. So basically here power is based on laws and rules. Officials holds the authority because of who they are. This is the basis of modern government and bureaucracy. Okay, एंड जो मॉडर्न सोसाइटी है वो इसी ऑथोरिटी के ऊपर काम करती है, राइट. तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी गवर्नमेंट अभी चल रहा है वो इस ऑथोरिटी पे बेस्ड है, ठीक है. दिस इज़ ऑल अबाउट. अभी और एक एग्जांपल का ये बॉक्स से देख सकते हो, टेबल है. टाइप, बेसिस, स्टेबिलिटी एंड एग्जांपल. टाइप ट्रेडिशनल, कस्टम्स पे बेस है, और स्टेबिलिटी है यहाँ पे थोड़ा बहुत, एग्जाम्पल किंग. नाउ कम्स चैरिस्मेटिक, पर्सनैलिटी पे बेस्ड है, थोड़ा अनस्टेबल है क्योंकि ये मतलब ऑफिशियल नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है लीडर. नेक्स्ट कम्स रैशनल लीगल, ये रूल्स एंड लॉज पे बेसिस है, और ये जो है ये हाईली स्टेबल है, like for example officers. Now conclusion, Weber's classification explains how authority functions in society and shows the transition from traditional to modern systems. Okay, so this is all about the chapter. It's completed.
So next, I'll be starting the second chapter. Till then, keep studying, stay healthy, safe. Okay, and bye bye. And also, if you like this video, don't forget to share this with your friends. So and help them. Okay, bye.